Good morning, dear students. So, yesterday we have completed with acquired immunity response and its types. So, whenever we are talking about types of the response, you have to write about humoral, or you can say antibody mediated immunity. And second one is CMI, that is cell mediated immunity. Both are specific, both are acquired immunity and gained through the learning process of the person. Now, whenever we are talking about modes of the immunity, okay, modes, not types. So modes of the immunity, the same way it is in the part of acquired immunity. Okay, there are two modes, that is active and passive immunity. Okay, active immunity and passive immunity. Okay, so just here in picturization, observe about it. Okay, after that we will be going into the discussion, what is active, what is passive. And dear students, from this section, many a times you can be asked the questions, that is differentiate between innate immunity and acquired immunity, differentiate between humoral immunity and cell mediated immunity, differentiate between active immunity and passive immunity, differentiate between immunization and vaccination. So these differences are very important from this section of the chapter. Please prepare in that way. This will help you in the NEET exam as well, okay, for true and false type reason assertion type of the questions. Okay, fine. So whenever we are talking about active immunity, you can see in this picture, active immunity is having two types, two modes, you can say again, that is natural way of the active immunity and artificial way of the active immunity. So whenever we are saying natural way, okay, that is infection. Okay, simple thing. Right now, corona pandemic is going on. Okay, many people are getting infected through coronavirus. After getting infected in their body, in their blood particularly, antibodies are produced. Okay, yesterday we have also discussed that people require plasma of the previously infected person. Okay, so these antibodies are what? So these antibodies are actually produced against that particular virus to fight against it. Okay, so whenever you are infected through certain pathogen, you are going to acquire the immunity against that particular pathogen. And during the subsequent exposure, आपने वो ग्राफ में भी देखा था कि पहला एक्सपोजर जब होता है तो it will take time, and whenever the same pathogen is infecting for second time, third time, or so on, we are having sufficient amount of the antibodies, and you can produce those antibodies very quickly. That's why second exposure is quick. Why? Because of the natural mechanism of the active immunity. Okay. Second way of active immunity is artificial. And in artificial, it is vaccination. Okay. So vaccination is the artificial way. What actually we are doing in vaccine, we are inserting, see, listen carefully. In vaccine, we are inserting epitopes of the pathogen, means the infectious particle or body parts of the pathogen, or entire pathogen but killed. Okay, जैसे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन है तो मेजरली इट इज डीएनए बेस्ड वैक्सीन, लेकिन अगर पोलियो वायरस वैक्सीन हमें पता है तो पोलियो वायरस का जो वैक्सीन है दैट इज हीट किल्ड पोलियो वायरस वैक्सीन, मतलब जो वायरस है उसको किल कर दिया गया है एंड एंटायर वायरस इज गेटिंग इंसर्टेड, लेकिन वो कैसा है, किल्ड वायरस है, तो किल्ड है तो वो जाके
रेप्लिकेशन वगैरह सेल में नहीं कर पाएगा, बट वो फॉरेन तो है ना, एंड बिकॉज ऑफ दैट आवर इम्यून सिस्टम विल बी प्रोवोक्ड अगेंस्ट इट, एंड दैट्स व्हाई वैक्सीन जब लेते हैं तब फीवर और कुछ अनईजीनेस, हेडेक एंड body pain and all these are happening. This is actually the effectiveness of the vaccine. Okay, so many a times वैक्सीन के अगर टाइप्स के बात करें तो एक वैक्सीन होता है हीट किल्ड और एटेन्यूएटेड वैक्सीन. हीट किल्ड और यू कैन से जनरली किल्ड और एटेन्यूएटेड. किल्ड का मतलब है आपने बैक्टीरिया वायरस जो भी है जिसके अगेंस्ट में आपने वैक्सीन डेवलप किया है, वही वायरस या बैक्टीरिया आपने उसको किल कर दिया हुआ है, एक सस्पेंशन में है, और उसका इंजेक्शन आप पेशेंट को दे रहे हैं. एटेन्यूएट का मतलब है वो किल नहीं किया है लेकिन उसको आपने इनएक्टिवेट कर दिया है, मतलब वो ग्रो नहीं करेगा बॉडी में जाके, किल नहीं किया है. सो दैट इज एटेन्यूएटेड. फिर तीसरा वैक्सीन होता है सब यूनिट वैक्सीन. सब यूनिट, तो सब यूनिट वैक्सीन का मतलब क्या है, तो उसका कोई एक बॉडी पार्ट, जैसे कि अगर टाइफॉइड का वैक्सीन अगर बनाना है तो टाइफॉइड का पूरा बैक्टीरिया इंजेक्ट करने की जरूरत नहीं है. आपको पता है कि टाइफॉइड के जो बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, वो जो साल्मोनेला टाइफी है, उस साल्मोनेला टाइफी का जो फ्लेजेला है दैट वाज एंटीजेनिक, उसका सेल वॉल का कुछ पार्ट है दैट इज आल्सो एंटीजेनिक, तो बस उसको ही आपको वैक्सीन में डेवलप करना है. पूरा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कील करके ऐड करने की जरूरत नहीं है. तो जहां जहां पे पॉसिबिलिटी है वहां पे ऐसा कर सकते हैं. तो ये 3 टाइप्स. फोर्थ टाइप है डीएनए वैक्सीन. ओके, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं तो पूरा बैक्टीरिया नहीं है लेकिन उसका कोई एक आरएनए या डीएनए ऐसा कोई पार्ट यहाँ पे वैक्सीन में हमें दिख रहा है, तो वही एज अ वैक्सीन काम करेगा. वही जाके, क्योंकि डीएनए है तो ऑब्वियसली उसके पास मैसेज है ये डीएनए किसका है, तो ये डीएनए पर्टिकुलर इस वायरस का है या उस वायरस का है, कुछ बैक्टीरिया का है, सो दैट विल बी रीडेड. ओके, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है ना ये, तो लर्निंग तो होगा ही यहाँ पे, और उसके बाद रिस्पॉन्स होना शुरू होगा. फिर उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स डेवलप करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, सेल्स को एक्टिव करेंगे, राइट. एक होता है रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, जो आपके चैप्टर नंबर 11-12 है बायोटेक्नोलॉजी के, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स. ओके, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स. रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स मतलब आपने एक ऐसा मतलब शफलिंग वगैरह करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए एक बनाया हुआ है या रिकॉम्बिनेंट आरएनए आपने बनाया हुआ है, एंड दैट यू आर गोइंग टू इंजेक्ट इनटू द पेशेंट. ओके, तो कहने का मतलब ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी के 2 टाइप्स हैं, दैट इज नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में आपको इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है, आर्टिफिशियल में वो इन्फेक्शन करवाया जाता है. अब देखिए वैक्सीन में क्या है, वैक्सीन में वही वायरस और बैक्टीरिया है, उसका बॉडी पार्ट है, उसका डीएनए या उसका आरएनए, और कुछ नहीं है. लेकिन फर्क इतना ही है कि एवरीथिंग इज इनएक्टिवेटेड. ओके, तो व्हाई इट इज एक्टिव, नेचुरल आर्टिफिशियल तो समझ में आया, लेकिन एक्टिव क्यों है, तो आपकी खुद की बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है. दैट्स व्हाई एक्टिव. योर बॉडी इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, योर इम्यून सिस्टम इज एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग. दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव इम्यूनिटी, क्योंकि आपके बॉडी ने वो एंटीबॉडीज डेवलप किए हैं, कहीं और से लाए नहीं गए हैं. दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव इम्यूनिटी. सो वैक्सीनाइजेशन और वैक्सीनेशन बोथ द टर्म्स आर करेक्ट. ओके, सो वैक्सीनेशन जो है इट इज अ काइंड ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी. यस, इट इज आर्टिफिशियल बट एक्टिव, क्योंकि आप वायरस या बैक्टीरिया पैथोजन इंसर्ट कर रहे हो और आपका बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, नेचुरल इन्फेक्शन में जैसे होता है वैसे ही. दैट्स व्हाई इट इज एक्टिव इम्यूनिटी. नाउ कम टू द सेकंड पार्ट, दैट इज पैसिव इम्यूनिटी. तो पैसिव में भी वैसे ही 2 पार्ट्स हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. अब नेचुरल मैकेनिज्म का यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया गया है, दैट इज मैटरनल एंटीबॉडीज. मतलब जब न्यू बॉर्न होते हैं तो उस न्यू बॉर्न को मदर जब फीडिंग करवाती है, ओके, सो इन द मिल्क ऑफ द मदर देयर आर एंटीबॉडीज. और ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया है, जब हमने टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज पढ़े थे, उसमें मैंने आपको बताया था IgA. IgA is the
secretory antibody which is present in mother's milk also, it is present in the tears also. Okay, so mother जब चाइल्ड को फीड करवा रही है तो उस मिल्क में एंटीबॉडीज होते हैं, पर्टिकुलरली IgA होते हैं, क्योंकि न्यू बॉर्न जो है अभी उसकी डेवलपमेंट इतनी नहीं है कि वो खुद इतना एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर पाए टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग एंटीजेंस और पैथोजेंस यू कैन से। तो मदर उसको प्रोवाइड कर रही है, वो चाइल्ड खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहा है एंटीबॉडी। ओके, इनडायरेक्ट मोड है, इसीलिए ये पैसिव है, समझ रहे हैं आप? इट इज इनडायरेक्ट। ओके, मदर इज प्रोवाइडिंग एंटीबॉडीज थ्रू मिल्क टू द चाइल्ड, चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। एक्टिव में क्या था, चाहे इन्फेक्शन हो चाहे वैक्सीनेशन हो, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। Okay, your immune system is activated and the antibodies which are produced are your own. That's why. Artificial passive immunity. तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में एक वर्ड है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। यहाँ तो सिर्फ एंटीबॉडीज भी आप समझिए, लेकिन मोनोक्लोनल में वर्ड आपको समझाता हूँ। मोनोक्लोनल, मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल सिंगल क्लोन के, सिंगल क्लोन के मतलब एक ही सेल में से या एक ही तरह के सेल में से प्रोड्यूस हुए हैं ऐसे एंटीबॉडी। सेल बायोलॉजी में क्लोन का मतलब, क्लोन के बहुत सारे मतलब होते हैं। ओके, जेनेटिक्स में अगर आप जाओगे या जेनेटिक इंजीनियरिंग में, तो क्लोन का मतलब क्या होता है, कार्बन कॉपी। तो यहाँ पे भी इसीलिए एक वर्ड है क्लोन, मतलब एक ही तरह के जो सेल्स है उसमें से जो प्रोड्यूस हुए हैं ऐसे एंटीबॉडी, दैट्स व्हाई मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। और एक ही तरह के एंटीजन के अगेंस्ट में ये काम करते हैं, एक ही तरह के, ओनली वन टाइप्स ऑफ द एंटीजन आर गोइंग टू बी टारगेटेड बाय दिस मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। दो तरह के एंटीबॉडी होते हैं, पॉलीक्लोनल एंड मोनोक्लोनल। पॉलीक्लोनल है तो एक से ज्यादा टाइप के पैथोजन के अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्स देंगे, दैट इज पॉलीक्लोनल। मोनोक्लोनल है तो एक ही तरह के सबसेट जो है सेल के उसमें से प्रोड्यूस हुए हैं और एक ही तरह के एंटीजन के अगेंस्ट में वो फाइट करेंगे। ओके, तो अभी मोनोक्लोनल और पॉलीक्लोनल का तो ठीक है, ये डिफरेंस आपको याद रखना है। लेकिन आर्टिफिशियल में एंटीबॉडी, आप देखिए यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसेस दिखाया है। अभी आप ये और भी टर्म सुन रहे हैं, आप दो टर्म अभी बार बार सुन रहे हैं, तीन टर्म वैसे यहाँ पे बोर्ड पे जो दिख रहा है उसमें ये तीन टर्म्स आप बार बार सुन रहे हैं। एक, वैसे तो ये चारों अभी का जो पेंडेमिक चल रहा है ये बहुत प्रैक्टिकल बनता जा रहा है पूरा चैप्टर हमारे लिए। तो एक, कोरोना का इन्फेक्शन किसको होता है, तो उसमें भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे, दैट इज नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। फिर जिसको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, गवर्नमेंट उसका वैक्सीनेशन करवा रही है, तो इट इज आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इन्फेंट्स जो है न्यू बॉर्न, उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस इसलिए कम है, बाय चांस अगर जो फीमेल है, जो मदर है, वो इन्फेक्टेड हो गई तो उसके बॉडी में भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे और वो एंटीबॉडी थ्रू द मदर्स मिल्क, थ्रू द मेमोरी ग्लैंड्स, वो चाइल्ड में भी जाने वाले हैं, इन्फेंट्स में भी जाने वाले हैं। तो ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, तो चाइल्ड जो है वो प्रोटेक्टेड रह सकता है फ्रॉम कोरोना इन्फेक्शन, जो फीडिंग कर रहा है ऐसा चाइल्ड। ओके, और मदर में अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो चुके हैं तो, राइट। और फोर्थ टर्म भी आप अभी पता ही है, प्लाज्मा, अगेन एंड अगेन। ओके, सो प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा हमें पूरा पता है, ब्लड का पूरा फ्रैक्शन है और उस प्लाज्मा में एंटीबॉडी भी है। तो जो पर्सन पहले से इन्फेक्टेड हो चुका है थ्रू कोरोना वायरस, उसके बॉडी में जो प्लाज्मा है, उसके ब्लड का जो प्लाज्मा है, उस प्लाज्मा में कोरोना के अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप हो चुके हैं। सो ऑब्वियसली क्या होगा अभी, तो अगर वो पर्सन प्लाज्मा डोनेट करेगा टू द पर्सन हु इज सफरिंग राइट नाउ फ्रॉम द इन्फेक्शन ऑफ द कोरोना वायरस, तो ऑब्वियसली इट कैन हेल्प इट। क्यों? कि उसके बॉडी में अभी इम्यून सिस्टम इतना वीक हो चुका है कि वो कोरोना के अगेंस्ट में फाइट नहीं कर सकता है। लेकिन जो कोरोना में से बच के निकला है,
ओके, उसके बॉडी ने अच्छे से फाइट किया एंड उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुए, तो वो एंटीबॉडी अगर किसी पेशेंट को दिए जाएंगे थ्रू प्लाज्मा तो वो भी बच सकता है, क्योंकि उसका पेशेंट का खुद का बॉडी अभी उसका इम्यून सिस्टम वीक हो चुका है, सप्रेस हो चुका है कि वो एंटीबॉडी प्रॉपरली जितने चाहिए उतने नहीं बना पा रहा है, तो हम उसको बाहर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। एक और टर्म में यहाँ पे टाइप करना चाहूंगा, आप सभी ने सुना होगा अभी बार बार, ये वर्ड आपने बार बार सुना है अभी कोरोना के साइकिल में, सेकंड साइकिल में, टॉसिलिजुमेब। टॉसिलिजुमेब ये वर्ड आपने बार बार सुना होगा। ओके, आपको यहाँ पे शायद टाइपोग्राफिकल एरर लगती होगी, लेकिन ये मैंने करेक्टली ए को कैपिटल किया हुआ है। टॉसिलिजुमेब क्या है, तो अभी आपने सुना है कि ये ऐसा एक इंजेक्शन है, अगर कोई पेशेंट अभी इन्फेक्टेड है थ्रू कोरोना वायरस, तो अगर इसको ये इंजेक्शन दिया जाए तो उसके जो क्रिटिकल कंडीशन उसकी बन रही है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, वेंटिलेटर्स एंड ऑल दिस, उसको वहां से बाहर निकाल सकते हैं हम, मतलब उसकी हेल्थ के ऊपर इसकी पॉजिटिव इफेक्ट हो सकती है। सो व्हाट इज इट? तो ये पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी है। ये टॉसिलिजुमेब और कुछ नहीं है, टॉसिलिजू ये एक्चुअली नाम है इस इंजेक्शन का। बाकी पीछे तो जो आप पढ़ रहे हैं ये मैब, ये मैब और कुछ नहीं है। मैब में एम स्टैंड्स फॉर मोनोक्लोनल, ए बी स्टैंड्स फॉर एंटीबॉडी, टॉसिलिजुमेब। ओके, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। तो जब भी ये, मतलब अगर आपको प्लाज्मा नहीं मिल रहा है तो टॉसिलिजुमेब से काम चल सकता है, टॉसिलिजुमेब नहीं मिल रहा है तो प्लाज्मा से काम चल सकता है। ऑब्वियसली टॉसिलिजुमेब में जो है वो स्पेसिफिकली टारगेटेड एंटीबॉडी रहेंगे और उसका कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा। ओके, दैट्स व्हाई इट इज मोर इफेक्टिव, ऐसा हमें लगता है। लेकिन फिर भी जो पर्सन सेम वायरस स्ट्रेन से इन्फेक्टेड है, अगर उसका प्लाज्मा अगर मिल रहा है, ओके, तो वो प्लाज्मा भी हमें हेल्प कर सकता है। ओके, सो फाइन, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वेल। ओके, और इसको अभी की जो प्रेजेंट कंडीशन उसके साथ मैच कर रहे हैं तो बहुत इजी बन रहा है समझने के लिए। ओके, फाइन। एक्टिव में नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, पैसिव में भी नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, ये दोनों तरह से तो हमने पढ़ ही लिया है। फाइन, एक्टिव इम्यूनिटी, so it is the immunity in which antibodies are produced in a host, मतलब पेशेंट जो है, या जो पर्सन, पेशेंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, करेक्ट वर्ड नहीं होगा, अगर इन्फेक्टेड है तभी हम पेशेंट बोल सकते हैं। तो जो पर्सन है उसमें ही एंटीबॉडी अगर प्रोड्यूस हो रहा है व्हेन द होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजेंस इन आइदर वे। कैसा एंटीजन? तो आइदर लिविंग और डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अदर प्रोटीन्स, मैंने ये आपको समझाया। और आप उसका डीएनए भी लिख सकते हैं, आरएनए भी लिख सकते हैं, मैंने आपको चारों तरह समझाए। डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब ये वैक्सीन की बात कर रहे हैं, अदर प्रोटीन मतलब वैक्सीन की बात हो रही है, इस अदर प्रोटीन के पीछे आप डीएनए एंड आरएनए भी लिख सकते हैं। 100% करेक्ट। इट इज अ स्लो प्रोसेस, क्योंकि लर्निंग मैकेनिज्म है ना। एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करेगा? दैट इज बी सेल, और बी सेल इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? acquired immunity, and acquired immunity are specific। acquired immunity response जो भी है वो specific है। फर्स्ट एक्सपोजर होगा तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, हमें पता है, और आईजीजी प्रोड्यूस होता है तब पहली बार में। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय टू वेज एक्टिव इम्यूनिटी, एक है नेचुरल मैकेनिज्म। ओके, यहाँ पे पिक्चर में भी आपको कोरोना वायरस का इनहेलेशन दिखाया हुआ है।
So it is developed during natural infection by microorganism. Natural infection अगर होगा तो ये प्रोड्यूस होते हैं. दूसरा होता है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी. तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में क्या है? इट इज डेवलप्ड बाय इंजेक्टिंग माइक्रोब्स डेलिबरेटली ड्यूरिंग इम्यूनाइजेशन. ओके, तो आप इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन और कुछ नहीं, इट इज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम. ओके, तो आप उनको इम्यून बना रहे हैं. इम्यून का मतलब ही है यू आर रेजिस्टेंट, यू आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट सर्टेन इन्फेक्शंस. ओके, दैट मीन्स टू बी इम्यून. Now passive immunity, here ready-made antibodies are directly given to body. Ready-made, it is of two types. रेडीमेड एंटीबॉडी ऐड हो रहे हैं. ओके, पर्सन खुद प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. एक है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. तो उसके दो मोड्स हैं. आप देखिए यहाँ पे एंटीबॉडीज, दैट इज आईजीजी. ये सारे एमसीक्यू हैं. एंटीबॉडीज आईजीजी फ्रॉम मदर by crossing placenta is entering into the fetus. ये during the pregnancy क्या होता है? तो fetus के खुद के तो एंटीबॉडी तब नहीं होंगे. तो मदर जो है, उस मदर में जो एंटीबॉडीज हैं 5 तरह के, GAMDE, गामडे, उसमें से जो IgG एंटीबॉडी है वो प्लासेंटा को क्रॉस करते. प्लासेंटा हमें पता है कि इट इज सेपरेटिंग द मदर्स बॉडी, ओके, फ्रॉम फीटस. तो प्लासेंटा क्रॉस करके, प्लासेंटा के बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 में. प्लासेंटा को क्रॉस करके जाते हैं और जो फीटस है उसको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि फीटस इज डायरेक्टली इन कांटेक्ट विद यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट. और एज वेल एज मदर जो भी मतलब उसका जो न्यूट्रिशन है, उसके लिए मदर जो कुछ भी फूड वगैरह, फूड स्टफ एंड एवरीथिंग द मदर इज ईटिंग, ओके यू कैन से, तो उसमें से जो न्यूट्रिशन है वो भी प्लासेंटा को क्रॉस करके जाते हैं. लेकिन ऐसा ना हो कि कोई एंटीजन भी प्लासेंटा को क्रॉस करके चला जाए अंदर और फिर वो जाके फीटस को डैमेज करे. तो उसके प्रोटेक्शन के लिए प्लासेंटा को क्रॉस करके आईजीजी जाते हैं. एंड दिस इज एमसीक्यू, इट इज द ओनली वन टाइप ऑफ द एंटीबॉडी. ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था जब हमने टाइप्स पढ़े थे. इट इज ओनली वन टाइप ऑफ द एंटीबॉडी आईजीजी विच कैन क्रॉस प्लासेंटा. बाकी किसी एंटीबॉडी को प्लासेंटा क्रॉस करने के पावर्स नहीं दिए गए हैं. और आप याद करिए, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस. सी वी आर लिंकिंग 2 चैप्टर्स. 11th का चैप्टर है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, RH. जब फादर जो है RH पॉजिटिव है, मदर RH नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली फीटस RH पॉजिटिव होगा और ड्यूरिंग द फर्स्ट प्रेगनेंसी कोई इश्यू नहीं होगा. लेकिन ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे ड्यू टू द एक्सपोजर बिटवीन मदर एंड फीटस, तो मदर के बॉडी में anti-RH एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे. और सेकेंड प्रेगनेंसी जब होगी तब वो anti-RH एंटीबॉडी विल क्रॉस द प्लासेंटा एंड दे कैन किल द फीटस. ओके, तो आपको क्वेश्चन होगा कि सर यू आर सेइंग ओनली IgG कैन क्रॉस द प्लासेंटा, हाउ anti-RH एंटीबॉडी इज क्रॉसिंग द placenta? So RH antibodies are actually, हम RH एंटीजन की वजह से उसको RH एंटीबॉडी बोल रहे हैं, लेकिन उसका टाइप कौन है? तो उसका टाइप IgG ही है. तो अब ये क्वेश्चन बन सकता है, अगर आपको दोनों चैप्टर सही से समझ में आए कि नहीं आए, ऐसा अगर सोचना है, पूछना है, तो ऐसा क्वेश्चन अराइज हो सकता है दैट ड्यूरिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस RH antibodies are crossing the placenta and they can kill the fetus during the subsequent pregnancies when the father is RH positive and mother is RH negative. What is the type of
RH एंटीबॉडीज, IgG, IgA, IgM, IgD और IgE। तो टाइप तो उसका IgG है। RH तो हम उसके टारगेट के नाम के हिसाब से उसको RH एंटीबॉडी बोल रहे हैं, बट उसका अगर जो टाइप अगर हम बात करें ऑन लार्जर वे तो इट इज IgG एंटीबॉडी। तो आप उस चैप्टर में भी 11th के बुक में भी उसको मार्क करिए कि RH एंटीबॉडीज आर एक्चुअली IgG टाइप्स ऑफ द एंटीबॉडी। दूसरा है IgA एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रम, ओके, एंड it will be delivered to the infants during the breastfeeding, okay। तो जस्ट आफ्टर द बर्थ मदर का जो फर्स्ट मिल्क है, ओके, उसके बारे में भी चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ने वाले हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी इवेंट्स। तो उसमें कोलेस्ट्रम जो है, द कोलेस्ट्रम विच इज ऑब्वियसली डिफरेंट देन द रूटीन मदर मिल्क, ओके, क्योंकि कोलेस्ट्रम के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन है, बहुत सारे एंटीबॉडीज हैं, पर्टिकुलरली IgA एंटीबॉडी ओनली, ओके। तो वो जो IgA एंटीबॉडीज है वो मदर के मिल्क के थ्रू इन्फेंट्स में मिलते हैं, and so that infants are preparing themselves to fight against variety of the antigens because अभी वो एनवायरमेंट को लर्न कर रहा है और उसकी इम्यून सिस्टम इतनी डेवलप नहीं है कि वो खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, राइट। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट MCQ है आपके लिए, मदर्स कोलेस्ट्रम इज कंटेनिंग IgA एंटीबॉडी। फिर दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एंटी टिटानस सीरम, ATS। अब ये सीरम क्या है, तो इसको भी आपने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है। सीरम में एंटीबॉडीज होंगे, हमें पता है। सीरम मीन्स प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर, दैट इज सीरम। तो इसीलिए हम क्लॉटिंग फैक्टर नहीं ले रहे हैं लेकिन सीरम ले रहे हैं, ओके। और सीरम में एंटीबॉडी तो होंगे क्योंकि सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर ही नहीं होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे टिटानस सीरम इंटरवेट, ओके। तो एंटी टिटानस, तो टिटानस, टिटानी अगर किसी को इन्फेक्शन हो रहा है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी करके एक बैक्टीरिया है, अगर उसका इन्फेक्शन किसी को होता है तो ये ATS दिया जाता है, दैट इज एंटी टिटानस सीरम। इसमें एक एग्जांपल आप जोड़ सकते हैं, दैट इज टोसिलिजुमेब, ओके, वो भी एक एग्जांपल आप इसमें अब ऐड कर सकते हैं, ओके, जो कोरोना इन्फेक्शन में दिया जाता है, फाइन। सो ये सीरम में एंटीबॉडी है, मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग, ओके। तो इन दोनों केस में जो पर्सन है हु इज एक्वायरिंग द इम्यूनिटी, वो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, उनको एंटीबॉडीज बाहर से दिए जा रहे हैं, ओके। एंड इन दैट वे they are acquiring their immunity, they are boosting up their immunity, and they are fighting against the invading antigens, okay। So this is passive immunity and its types. Now immunization. So immunization is based on memory of the immune system. तो एक बार पहले बोर्ड पे हम देख लेते हैं व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। तो जनरली आपके जो बी सेल हैं विच आर टारगेटेड बाय सम एंटीजेंस, ओके, कोई अगर एंटीजन उनको टारगेट करने के लिए आया और आपके बी सेल ने, सपोज दिस इज द स्मॉल वन इज एन एंटीजन और ये आपके बी सेल है, उसने आपके बी सेल को टारगेट किया, तो आपके बी सेल ने क्या किया, तो आपके बी सेल ने एंटीबॉडीज प्रोड्यूस किए, आपके बी सेल ने एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए, वाई शेप एंटीबॉडीज। लेकिन ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस कैसे होते हैं, तो व्हेनेवर दिस पर्टिकुलर एंटीजन इज टारगेटिंग टू द बी सेल, आपका बी सेल जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है, आपका बी सेल दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है
एक होता है मेमोरी सेल, ओके, और दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। दूसरा होता है प्लाज्मा सेल। तो जब भी ये एंटीजन टारगेट करता है तब क्या होगा, तो एट दैट टाइम your B cell will be divided in two types, this two, plasma and memory cell, and the plasma cells are actually going to synthesize or produce, you can say, antibodies. Okay, आपके जो प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा बी सेल्स, कि ये आपका बी सेल था, ओके, तो आपका जो प्लाज्मा सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा, और एट दैट टाइम दिस एंटीबॉडीज विल फाइट अगेंस्ट द इन्वेडिंग एंटीजन, ओके, तब ये एंटीजन के साथ फाइट करने जाएंगे। लेकिन ये दूसरा एक जो सेल बना है विच इज मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल क्या करता है, तो ये मेमोरी सेल एक सीसीटीवी है, ऐसा समझिए। वो ये पूरी प्रोसेस को रिकॉर्ड करता है कि प्लाज्मा सेल ने क्या किया, किस तरह के एंटीबॉडी बनाए, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उनका टाइप कौन सा है, आईजीजी है, ए है, एमडीई, कौन से टाइप के हैं, किस तरह से इन एंटीबॉडी ने इस पर्टिकुलर एंटीजन को टारगेट किया, कहाँ पे जाके वो एंटीजन के ऊपर बाइंड हुए और किस तरह से उसको डिस्ट्रॉय किया, हाउ दे हैव एलिमिनेटेड दिस एंटीजन फ्रॉम द बॉडी एज वेल, everything will be recorded in this memory cell. And it is interesting to note this memory cells are having lifespan of exactly of the lifespan of the person, मतलब जब तक हम जिंदा रहते हैं तब तक ये मेमोरी सेल रहते हैं। अब क्या होगा, सेम एंटीजन अगर वापस आ रहा है आपके बॉडी में इन्फेक्ट करने के लिए, तो ये मेमोरी सेल जो है उसको सब कुछ पता है, सो इट विल ओपन अप ऑल द वीडियोस, ओके, वो देखेगा अच्छा ये वही एंटीजन है, सो इट विल आस्क द बी सेल्स टू प्रोड्यूस दिस टाइप ऑफ द एंटीबॉडी, क्योंकि उसको पता है कि लास्ट टाइम जब ये एंटीजन आया था तब हमने ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस किए थे, और उसका रिस्पॉन्स कैसे करना है वो भी उसको बताता है, ओके। सो ये इसीलिए आप देखिए फर्स्ट एक्सपोजर में टाइम लगता है, ग्राफ याद करिए, और सेकंड एक्सपोजर में टाइम नहीं लगता है, सेकंड एक्सपोजर इज वेरी क्विक, वेरी इंटेंस, ओके। सो दिस इज द वे, फाइन। सो इम्यूनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इम्यूनाइजेशन। नंबर वन, एक है एक्टिव इम्यूनाइजेशन और दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन। अब देखिए एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी ये अलग है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन ये दोनों अलग है, ओके। देखते हैं व्हाट इज एक्टिव इम्यूनाइजेशन, तो दैट इज वैक्सीनेशन अगेन, ओके। एक्टिव इम्यूनाइजेशन मतलब वही निकलेगा कि आपका बॉडी खुद एंटीबॉडी जनरेट कर रहा है। सो इन दिस a preparation of vaccine, that is antigenic protein of pathogen or inactivated pathogen, is introduced into the body. It results in the development of the antibodies, okay. During actual infection, the antibodies neutralize the antigens. The vaccines also generate memory B and memory T cells. They recognize the pathogen quickly, क्योंकि पहली बार आपने जब वैक्सीन दिया था तो it has taken time. आप देखिए जिनको अभी भी, जिनको एक बार कोरोना हो चुका था and they have taken the vaccine, so they have responded very quickly, मतलब उनको जो फीवर, बॉडी पेन, हेडेक, ये अनइजीनेस, ये कुछ आवर्स में ही स्टार्ट हो गया था। और जिन लोगों को अभी तक कोरोना नहीं हुआ था, उनको ये सिम्टम्स या साइड इफेक्ट्स ऑफ द वैक्सीन्स जो है वो लेट डेवलप हुए थे। क्यों? तो ऑब्वियसली आपने वैक्सीन भले ही दिया है अभी, लेकिन अगर कोई पर्सन पहले से इन्फेक्टेड है तो उसमें एंटीबॉडी तो होंगे ही, तो जनरली वो एंटीबॉडी क्या करेंगे,
those antibody will identify that vaccine as a virus and will quickly respond. मेमोरी है उसके पास. लेकिन जिसको कोरोना नहीं हुआ है अभी तक और उसने वैक्सीन लिया तो उसमें वो मेमोरी नहीं है, तो it will those person will generate late responses. Okay, एक दिन के बाद उनको बुखार आएगा और ये सब होने वाला है. Okay, for example पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, डीपीटी वैक्सीन एटसेट्रा, इन सब में आप कोविशील्ड, कोवैक्सीन, इनके नाम भी अब आप डाल सकते हैं. वैक्सीन्स आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. मैंने आपको बताया कि रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स भी बनाए जाते हैं यूजिंग डीएनए. जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जो है इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट. है तो वो भी वायरस का वैक्सीन, लेकिन हम बनाते उसको यीस्ट में है. एंड यीस्ट इज अ फंगस. कैसे बनाते हैं? चैप्टर नंबर 11-12. ओके फाइन. दूसरा है पैसिव इम्यूनाइजेशन. सो इट इज द डायरेक्ट इंजेक्शन ऑफ द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज और एंटीटॉक्सिन्स. पहले से ही आप एंटीबॉडी जो बना के रखे हुए हैं उसको, टोसिलिजुमेब वाला केस, ओके, वो एंटीबॉडीज या एंटीटॉक्सिन्स जो हैं उसको आप ऐड करिए. इट इज रिक्वायर्ड फॉर क्विक इम्यून रिस्पॉन्स. ओके तो एंटीबॉडी रेडी है. वैक्सीनेशन में क्या होगा? वैक्सीन जाएगा बॉडी में, उसके बाद रिकॉग्नाइज किया जाएगा एंड देन एंटीबॉडीज विल बी प्रोड्यूस्ड. लेकिन यहां पे पैसिव इम्यूनाइजेशन में क्या है? एंटीबॉडी जो है वो एंटीबॉडी डायरेक्ट हम उसको दे रहे हैं तो उसको जाके सिर्फ काम करना है. दैट्स व्हाई इम्यूनाइजेशन इज वेरी क्विक. मतलब पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है वो क्विक रिस्पॉन्स देता है. जैसे ऐसा है एंटीटॉक्सिन अगेन टीटानस, स्नैक वेनम. ओके, स्नैक वेनम एंटी सीरम आप देखिए, स्नैक वेनम एंटी सीरम. तो अगर किसी को स्नैक बाइट हुआ है तो आप इसको ये दे सकते हैं. अब ये कहाँ से लाया होगा? तो ये सीरम गेन किया गया है बाय अलाउिंग अ बाइट टू सर्टेन एनिमल. ओके, स्नैक जो है वो अगर किसी एनिमल को बाइट कर रहा है और वो प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडीज, वो एनिमल प्रोड्यूस कर रहा है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द स्नैक वेनम, उसको कलेक्ट किया जा रहा है यहाँ पे. ओके, टीटानस में दैट इज एंटी टीटानस सीरम ATS हम देते हैं, तो दैट इज आल्सो पैसिव इम्यूनाइजेशन. ओके फाइन. So dear students, for today, this is done with our syllabus right now. Okay, tomorrow we will be studying about allergy, autoimmune response and HIV/AIDS. ओके तो कल हम एलर्जी के बारे में, एलर्जिक रिस्पॉन्स और ऑटो इम्यूनिटी, एक अलग तरह के इम्यून सिस्टम, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एज वेल एज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट वायरल इन्फेक्शन दैट इज and disease caused by some virus that is HIV/AIDS. Okay fine. So please go through this videos properly. These are the chapters from which you can gain lot during your NEET exam. Okay, बहुत अच्छे अच्छे 1 mark के question यहाँ से बन सकते हैं. Okay fine, and I hope you all are understanding the lectures very well. Okay, and correlating these lectures with present condition as well. Okay fine. So if you have any doubts, any queries regarding this, you can ask me, you can question me. Fine, have a nice day.